Hello students, welcome to Europedia. I am Jitendra Tyagi and I am here to discuss about national sport round conducted by CCMT 2022. Okay. So students have many doubts in their mind regarding this national sport round. So I will try to clear most of the doubts through this video. Okay. So first of all, whenever you go to the CCMT web page, okay, you write in CCMT 2022 in Google, and then you will find this option, candidate activity board. Here you have to choose this national sport round registration, participation fee and choice filling. Okay, and if you want to see the vacancies available, then you can click here, seat vacancy for national sport round. So these 2 points are important. Okay. Now seat vacancy is available in the form of a PDF file in which they have written the name of the college, their branch, group, category and number of vacancy, everything they have given. So all of you can download that PDF, or you can check that PDF and you can get the idea of how many vacant seats are there in different programs. Okay. Now what you have to do, from this get an idea, okay, get an idea of all the colleges in which you are interested to join, okay, where you can get admission and then you can join. So note down all such college where vacancies are available. Okay, but don't fill only those choices in the choice filling activity. Okay, suppose there is no seat available in, NIT Calicut, okay, EDT, but you are interested in that program, and that is available in the choice list. So you keep that in the choice list at the top priority. Okay, and suppose vacancies are in a telecommunication branch in NIT Calicut. You are more interested in EDT. There is no vacancy available in the PDF file. Okay, but in communication there is vacancy available. So some students will fill only communication. Okay, so don't do this. You fill that EDT also. Whether you get it or not, don't worry about that. But you keep that also on top if you are more interested in that. And below that you can keep that communication where vacancy available and you are ready to join. And if there is any college where vacancies are available but you are not interested to join at any cost, whether you get admission or not, but you are not interested in joining that branch, that college, then please don't fill such choice in your choice list. Remove that. Okay, जिस कॉलेज में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और जिसमें आपको ज्वाइन ही नहीं करना है, फाइनली अगर मिल भी जाए तब भी नहीं करना है, ऐसे किसी भी कॉलेज को चॉइस में आपको नहीं रखना है. ठीक है, लेकिन जहां पे आपका इंटरेस्ट है, भले वहां पे वैकेंसी नहीं है, स्टिल उसको फिल करो. ठीक है, NIT तिरची है, टॉप की जो ब्रांचेस में आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड हो, जहां पे उनको रखो प्रायोरिटी के हिसाब से, एज यू हैव डन इन द केस ऑफ स्पेशल राउंड और रेगुलर राउंड. सेम तरीके से आपको बनाना है अपना चॉइस लिस्ट. लिमिटेड सीट रखनी है, लेकिन अच्छी वाली रखनी है, भले अवेलेबल हो या ना हो. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर. नाउ आई एम क्लिकिंग दिस नेशनल स्पोर्ट राउंड, सपोज, देन व्हाट आई गेट, then we will get this page, registered candidate sign in and new candidate registration. Okay, so there are 2 types of candidates. Okay, now those candidates who did not participate in any of the regular round as well as special round, who did not even register for CCMT up to now, who did not fill their details, for such candidate you have to click on this new candidate registration. Then they will ask all your details and a password, ID, different things will be created, and then you can log in into that. So new candidate registration is for those who never made a login ID this year, okay, in CCMT. जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं करा है रेगुलर राउंड में भी और स्पेशल राउंड में भी, किसी में भी रजिस्टर नहीं करा है, उनके लिए तो ये होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. But those who already registered in CCMT, whether in regular round or in special round, okay, किसी भी राउंड में आपने अगर रजिस्टर कर लिया है पहले, ठीक, then you have to just fill your gate registration ID and password which you created that time. जस्ट लॉग इन, जो एक्टिविटी आप डेली करते हो लॉग इन करने के लिए CCMT में,
do the same thing. Okay, so now suppose I am filling here registration ID as well as password and then security pin, then next page we will get this type of information. Okay, there is some kindly confirm before proceeding. So there is list of instructions, kindly go through these all instructions. Okay, ये जो भी instructions हैं इनको आप एक बार read कर लो सबको satisfaction के लिए. बहुत सारे points हैं, I can clear the queries regarding those points. एक बार read करना है and then go to the below page. In this, then there will be option of candidate consent. Do you want to participate in the national sport round of counseling? Now if you are willing to participate in this, then you have to say yes. Okay, and then enter your password and then save and proceed. But if you have already got admission in some IIT or in some NIT and you do not want to participate in this sport round, national sport round, then you say here no. अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एक बार यहां लिख दो, क्लिक कर दो इस पे, यस और नो का ऑप्शन आएगा, यू से नो, पासवर्ड और सेव एंड प्रोसीड. तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे इस नेशनल स्पोर्ट राउंड में. अगर करना है तो यस पे क्लिक करना, नहीं करना तो नो पे क्लिक करना है. ओके, नाउ ये आपका जो नेशनल राउंड है ये फाइनल मोपअप राउंड है, मींस देयर विल बी नो फर्दर राउंड. यही है अब एंड में, बस लास्ट राउंड है. जिसको जो मिला यहां पे मिल जाएगा. इसके बाद सीसीएमटी की तरफ से अब कोई राउंड कंडक्ट नहीं होगा. ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. ऑल द प्रोसेसेस, रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड रिमेन सेम एज इन अर्लियर रेगुलर राउंड. जो अप्लाई करने की कंडीशंस थी वो सारा क्राइटेरिया सब कुछ सेम है. ठीक है, और अंडरटेकिंग ऑलरेडी आपने दिया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे. अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो अभी देना है, अदरवाइज ऑल ये सारा कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हो. नाउ ये जो लिस्ट है जो कंसेंट मांगा था उन्होंने, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप रीड कर लोगे केयरफुली. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखो, पहले मैं डिस्कस करता हूं एक बार. आई हैव रीड ऑल द गाइडलाइंस अवेलेबल इन द मेन ब्राउचर. आपको ब्राउचर को रीड कर लेना है अगर आप करना चाहते हो. ठीक है, नेशनल स्पोर्ट राउंड भी उसमें ऐड कर दिया उन्होंने. ठीक है, जो पहले ब्राउचर अवेलेबल था इंफॉर्मेशन ब्राउचर, उसमें एनएसआर के पॉइंट्स भी उन्होंने ऐड कर दिए हैं. ठीक है, तो ब्राउचर को आप रीड कर सकते हो. जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो सारी आपने रीड कर ली हैं ऑलरेडी पहले. स्पेशल कंडीशंस जो किसी डिफरेंट एनआईडीज के डिफरेंट डिपार्टमेंट में होती हैं, दोज यू ऑलरेडी हैव रीड ऑल दोज कंडीशंस. ओके, नाउ आई एम अवेयर दैट my admission to the allotted institute or university will be cancelled if at any stage it is found that I do not satisfy the general eligibility criteria. ठीक है, अगर किसी भी स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये पता चला कि आप क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये वो बोलना चाहते हैं और आप इसके लिए एग्री करते हो. ठीक है, I am aware that national sport round is being conducted against the non allotted seats रिमेनिंग आफ्टर द स्पेशल राउंड्स ऑफ सीसीएमटी. जो अभी तक अलॉट नहीं हुई है सीट्स, ठीक है, ये उनके लिए कंडक्ट किया जा रहा है. जिसको सीट नहीं मिली है अभी तक, कोई भी सीट, ठीक है, सॉरी, जो सीटें अभी नहीं भरी गई है, मतलब जो वैकेंट सीटें हैं, ये उनके लिए किया जा रहा है. ठीक है, ये पॉइंट आपको सारे रीड करने हैं. देन अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहां पे, आई एम ऑल्सो अवेयर दैट एनी फी ये पॉइंट पढ़ो जरा, पॉइंट नंबर 6. एनी फीस पेड अगेंस्ट द फाइनली अलॉटेड सीट टू मी ड्यूरिंग एनी ऑफ द प्रीवियस राउंड्स, ठीक है, 3 रेगुलर राउंड 2 स्पेशल राउंड, इफ एनी मे बी फॉरफिटेड बाय दैट अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट. अब देखो ये पॉइंट क्या है कि अगर आपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंफ्यूज भी कर रहा है बच्चों को, इसको मैं दूर कर देता हूं. ये वाला ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई भी फीस फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट को पे कर दी है, ठीक है, आपने फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट को कोई फी पे कर दी है, ठीक, और ये एक्सेप्ट पीएफ एंड एसएफ, उससे अलग, वो तो सीसीएमटी को पे किया है ना आपने, तो सीसीएमटी को जो पे किया है दैट इज डिफरेंट. बट अगर आपने जो इंस्टीट्यूट को पे किया हुआ है, किसी कॉलेज को आपने ऑलरेडी कुछ पेमेंट पे कर दिया,
जैसे आपने किसी का बैलेंस फी पे कर दिया, मान लिया अभी कुछ जैसे एनआईटी राउरकेला में कुछ बच्चों ने फी पेमेंट कर दिया ऑलरेडी, लास्ट डेट पहले उनका था, बाद में इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो सम स्टूडेंट्स में हैव पेड सम अमाउंट टू एनी कॉलेज डायरेक्टली, कॉलेज को आपने पे किया हुआ है बैलेंस फी के नाम पे, या कोई भी फी अगर पे किया हुआ है, सीसीएमटी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और वो कॉलेज की पॉलिसी से कंडक्ट होगा, ठीक है ना। कॉलेज के रिफंड रूल्स चलेंगे, वो वापस करें या ना करें उसको, वो कॉलेज का मैटर है, सीसीएमटी का मैटर नहीं है, ठीक है। सीसीएमटी को जो आपने पे किया है, सीसीएमटी उसके बारे में रेस्पॉन्सिबल है। जो आपका पार्सल एडमिशन फी और सीट एक्सेप्टेंस फी आपने सीसीएमटी को पे किया है 40,000, वो सीसीएमटी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बट नॉट फॉर एनी अदर अमाउंट, ठीक है। आप उसके रिगार्डिंग सीसीएमटी से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। मान लिया किसी ने एनआईटी राउरकेला का भी पे कर दिया, स्पेशल राउंड 2 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला और आपने वहां पे उनका बैलेंस फी पे कर दिया कुछ भी, ठीक है, तो उसको रिफंड का रूल जो है वो कॉलेज डिसाइड करेगा, ना कि सीसीएमटी। इसका ये मीनिंग है, ठीक है। I am aware that to participate and log the choices in NSR, I need to pay the requisite sport round registration, non-refundable and participation fee. इसके बारे में मैं डिटेल में भी बात करूंगा, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि आपको ये पे करना है, क्या क्या, एक तो स्पोर्ट राउंड रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल है जो, और पार्टिसिपेशन फी, ठीक है। ये दो चीजें आपको पे करनी है स्पेशल स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। डिटेल में अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, I am also aware that in case the offered seat during NSR is not accepted by me, then the sport round participation fee paid by me would be forfeited. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल स्पोर्ट राउंड and after the result you get a seat, or you have a seat right now and that is upgraded, finally you have a seat with you after the national sport round. Okay, now you have to join that seat, and if you do not join that seat, okay, then CCMT will not refund your money. Okay, जो भी यहाँ पे participation fee है that will be transferred to the college, not to you. अगर आपने एक सीट आपको मिल गई है स्पोर्ट राउंड के बाद, चाहे वो न्यू सीट मिली है या अपग्रेडेड सीट मिली है, ठीक है ना, बट यू हैव ए सीट, देन योर मनी विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। वो एडजस्टेबल है, वो जो आपने पे किया है 40,000 ऑलरेडी पे कर चुके हो या अभी पे करोगे फर्स्ट टाइम, वो आपका क्या है, एडजस्टेबल है इन द इंस्टीट्यूट फी बट नॉट रिफंडेबल। स्पोर्ट राउंड के बाद वो पैसा वापस नहीं होगा अगर सीट मिल जाती है तब, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीट नहीं मिलती है, right now after the special round 2 you don't have any seat with you, and after sport round also you don't get any seat, then your money will be refunded back, don't worry about that. Okay, now so these are the two important points. कोई भी incorrect information नहीं डालना है। फर्दर आई अंडरटेक दैट करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है, प्रिंट आउट लेना है, चॉइस फील्ड का प्रिंट आउट लेके रखना ध्यान से, ठीक है ना, जो भी आप चॉइस फिल कर रहे हो। ओके, नाउ कम टू फी। अब ये जो फी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जब आप लॉगिन करोगे वहां पे ऑप्शन आएगा पे फी, ठीक है, इसके लिए स्पोर्ट राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहां पे ऑटोमेटिक फी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो फी पे करना है, अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज यू आर द स्टूडेंट हु नेवर अप्लाइड इन CCMT ड्यूरिंग दिस ईयर, हु नेवर पेड एनी अमाउंट टू CCMT, you are first time registered and first time you are participating directly in the national sport round. अभी तक आपने ना रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किया, ना ही आपने स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट किया, आप फर्स्ट टाइम नेशनल स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो हाउ मच यू हैव टू पे? यू हैव टू पे 3,000 प्लस 40,000, टोटल 43,000 यू हैव टू पे। ओके, 43,000 किसको पे करना है? जो फर्स्ट टाइम CCMT में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइमर। ओके, तो इसमें जो 3,000 है ये तो रजिस्ट्रेशन फी हो गया, NSR रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। और ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? जनरल के लिए बता रहा हूं, जनरल, ठीक है, EWS और OBC उनके लिए,
इफ वी टॉक अबाउट SC/ST तो उनके लिए कितना है 15,000, तो ये वाला अमाउंट है, ठीक है, और प्लस 2500 ये वाला है, टोटल ऐड हो जाएगा तो 17,500। ये किनके लिए, SC/ST और उनके लिए PWD के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, उनको ये अमाउंट पे करना है, जिसमें ये 3,000 या 2500 जो रजिस्ट्रेशन फी है ये ना ही रिफंडेबल है ना ही एडजस्ट होगा। ये आपकी बैलेंस फी में भी, मतलब इंस्टीट्यूट की फी में भी एडजस्ट नहीं होगा और ये आपको रिफंड भी नहीं होगा, चाहे कोई सीट मिले या ना मिले। ओके, नाउ देयर आर 2 केसेस फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। सपोज यू डू नॉट गेट ए सीट, ओके, अगर आपको पहली बार आपने पार्टिसिपेट किया है डायरेक्टली NSR में एंड यू डू नॉट गेट एनी सीट, देन 40,000 फ्रॉम दिस, दैट वाज द पार्टिसिपेशन फी, NSR पार्टिसिपेशन फी, ये वाला 40,000 या 15,000 SC/ST के लिए, दिस विल बी रिफंडेड बैक टू योर अकाउंट, ये आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा रिफंड में, अब तो दिसंबर आपको रिफंड मिल सकता है, बट ये रिफंडेबल हो जाएगा आपका ये पूरा पैसा, 40 या 15 डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। ओके, और अगर आपको कोई सीट मिल जाता है, सपोज यू गेट ए सीट, नाउ you don't have any choice of rejecting that or floating that or sliding that, nothing. If you get a seat, you have to take it, okay, and suppose you don't take it, then CCMT will not refund your money back to you. ये जो आपका 40,000, ठीक है, या 15,000 आपने पे किया होगा, ये CCMT आपको रिफंड नहीं करेगा, CCMT will transfer this amount to the institute which you got. Now that college may refund some amount to you, that will depend upon the college how much they refund. Maybe they do not refund anything, or maybe they refund entire amount by deducting some small amount. So that is the policy of the college, individual college. CCMT is not going to refund you. Okay, so ये new registered candidate के लिए हो गया जो first timer है। Now come to those students who already participated in the previous round, special round 2, and they got a seat there, okay, and you have already paid, you have a seat with you, special round 2 में आपने participate किया and you have got a seat there, ठीक है, अब वो सीट में आपने पे कितना किया हुआ है 30 और प्लस 10, 40,000 आपने पे किया हुआ है जनरल कैटेगरी में और इसमें दूसरी कैटेगरी में अलग, ठीक है ना, तो जो ऑलरेडी पे किया हुआ है आपने, अब आपको फिर से 40 नहीं पे करना है। Now you have to pay only this 3,000 or 2,500 according to the category. जिनका ऑलरेडी पेड है पैसा, ठीक है, 40,000 ये पेड है ऑलरेडी PF और SF के नाम पे, और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन बच्चों को केवल रजिस्ट्रेशन फी देना है ये वाला, ठीक है। नाउ इफ इन द नेक्स्ट रिजल्ट, जब रिजल्ट आएगा स्पोर्ट राउंड का, यू गेट ए सीट, nothing will be refunded, okay. If you don't get a seat and you don't have any seat right now also, suppose, then money will be refunded. But if you have a seat right now in special round 2, you have a seat with you, now you are trying to upgrade that seat, and suppose your seat is not upgraded, you left with the same seat, then you have to take that. No money will be refunded from CCMT, money will be transferred to the respective college, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होगा अभी मेन, कि आपके पास स्पेशल राउंड 2 में सीट है, कोई भी एक कॉलेज है आपके पास, पैसा आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है, वहां का बैलेंस फी पे किया, उसका कोई गारंटी नहीं है, CCMT की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, वो अलग है, 40,000 आपका पेड है। तो अगर आपको कॉलेज में कोई नया सीट नहीं मिलता है स्पेशल राउंड में, बट जो अभी सीट आपके पास है वही रहता है आपके पास, अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो सीट तो है ना आपके पास, देन नथिंग विल बी रिफंडेड टू यू, दैट विल बी ट्रांसफर टू द कॉलेज। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही क्वेरी होगा, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फी का क्या सिस्टम है आप यहां पे भी रीड कर सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं इसको। फी टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल राउंड, दिस विल बी ए पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट फी एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एडमिशन फी। ये एडजस्टेबल है, ठीक है, अगर आपको सीट मिल गई है तो कॉलेज को ट्रांसफर हो जाएगी, वहां पे एडजस्ट हो जाएगी आपकी, वहां पे बैलेंस फी आपको उतना ही डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नाउ इफ ए कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पेड SAF एंड PF, अब देखो यहाँ पे ये CCMT की तरफ से लिखा हुआ है
if a candidate has already paid SAF and PF in previous rounds, then that fee will be adjusted towards NSR participation fee. वही सीट आपकी वही फी मानी जाएगी, NSR पार्टिसिपेशन फी अलग से पे नहीं करना आपको, ठीक है ना। और अगर किसी बच्चे ने केवल SAF जमा किया है, ठीक है, बट डिड नॉट पे PF, अगर किसी बच्चे ने केवल 30,000 किया है तो उसको 10,000 और प्लस 3,000 13,000 पे करना पड़ेगा मोर, ठीक है। जिस बच्चे ने ऑलरेडी क्या जमा किया हुआ है SAF लेकिन PF पेड नहीं किया, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, PF भी जमा करना पड़ेगा 10,000 वाला और प्लस 3,000 13, या कैटेगरी के हिसाब से जो इनका है, इस कैटेगरी में जितना भी 5,000 और ये वाला पे करना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ फ्लो एंड काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ राउंड, NSR राउंड, यू कैन सी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन by paying sport round registration fee, choice filling you have to do, log the choices, okay. Now fresh choice filling will be there. आपको ऐसा नहीं कि ऑल जो आपने पहले चॉइस फिल किया हुआ वो चलेगा, नहीं, फ्रेश आपको फिर से फिल करना है, अरेंज करना है एज यू हैव डन इन द प्रीवियस राउंड्स, ओके। देन सीट अलॉटमेंट विल बी देयर, एंड आफ्टर सीट अलॉटमेंट all the NITs have mentioned physical reporting date, so this is to be done. This is very, very important. Please visit the website of the respective NIT which you already got or which you are going to get in the result of this round, okay. So check the date mentioned there for physical reporting and reach that institute physically offline, okay, on the respective date, and that day or before that you have to pay the balance fee, okay. जिस इंस्टीट्यूट का जो भी बैलेंस फी है आपका, ये माइनस करके SAF और PF वो आपको पे करना होगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से देखो, ए कैंडिडेट वंस अलॉटेड ए सीट इन NSR मस्ट रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन पर्सन, वी रेडी टू पे बैलेंस फी एंड कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जिनको भी सीट मिलेगा NSR में या जो अपग्रेड होगा, तो नई सीट जो भी है या पुरानी जो अपग्रेड होगी हुई है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कंपलसरी जाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू डिपॉजिट द बैलेंस फी ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन NSR टू रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एज पर द NSR शेड्यूल, देन द अलॉटेड सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड और डिपॉजिटेड स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेशन फी वुड बी फॉरफिटेड। अगर आप ये बैलेंस फी पे नहीं करते हो इंस्टीट्यूट की, ठीक है, ड्यू डेट में, तो आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी और आपका पैसा भी चला जाएगा ये वाला, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है फिर रिटर्न होने की, वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा उसके बाद। Once a candidate is allotted a seat in NSR but does not join the allotted institute, her or his fee refund would be governed by that institute rules only and not by CCMT, ठीक है। एक बार आपको सीट अलॉट हो गई है, उसके बाद जो भी रिफंड के रूल्स होंगे, ठीक है, आप मान लिया ज्वाइन ही नहीं करते हो तो रिफंड हो सकता है। सभी NITs का डिफरेंट रूल है, जैसे NIT कर्नाटका में जो NIT सूरतकल है, उन्होंने आपको डेट दे दिया है कि भाई इस डेट से पहले अगर आप अप्लाई कर देते हो रिफंड के लिए तो आपकी जो फी है वो सारी हम रिफंड कर देंगे, लेकिन कब करेंगे, जब CCMT से हमें आएगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग डेट होगा, मतलब स्पोर्ट राउंड के बाद भी अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते हो किसी वजह से तो रिफंड तो हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर कि कितना अमाउंट वो रिफंड करते हैं। ये सिंपल सा पॉइंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिजिकली जब रिपोर्ट करोगे वहां पे भी होगा, तो जो भी NIT ने रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड किए होंगे वो आपको लेके जाना है, ठीक है। वो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। और रिफंड के बारे में अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल है, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहां पे registration fee paid for registration is non refundable, non adjustable. When no seat is allotted in NSR, refund of sport round participation fee without any deduction will be initiated after the completion of the counseling process. तो अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है NSR के बाद, या अभी कोई सीट नहीं है, चाहे वो पिछली सीट हो या नई अपग्रेडेड हो के, सीट नहीं है आपके पास, ठीक है ना, उस केस में आपका सारा पैसा वापस आएगा विदाउट एनी डिडक्शन, ठीक है। और if no seat is allotted to the candidate in NSR, sport round participation fee will be refunded without any deduction. और अगर सपोज आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से सीट कैंसिल होती है CCMT की तरफ से, तो 2000 रुपीज कटेंगे और बाकी आपको वापस मिल जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे अगर सीट कैंसिल होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तब भी आपकी फी रिफंडेबल है 2000 डिडक्ट होके। Okay students, so these were the important points regarding your this special round. Now again I am repeating, do the choice filling properly, keep the best choice at the top priority, okay, and fill all the choices where seats are available and you are interested to join, and fill choices where is no seat is available, still you fill those if that is a good choice, okay. So this is my point for your information, okay. Now I am ending this meeting and we will discuss other things in the next video, okay. All the best.